Namaste friends, let us discuss the chapter Wave Optics as per the 12th standard Maharashtra board syllabus. You know very well optics. Optics means the branch of physics which deals with study of light and all the phenomena of light. In short, we can say study of light, that is the optics. Optics is divided into two parts. What are that? First one is ray optics. Second one is wave optics. In ray optics, light is studied by using rectilinear propagation phenomena. The study of light by using rectilinear propagation. What is the meaning of rectilinear propagation? Rectilinear propagation means traveling of light. Traveling of light along straight line. So by using this phenomena, that means by using light rays. Light rays, what is light ray? Direction along which light travels, path along which light travels. That is the ray of light. And you know that path is straight line. So propagation of light along straight line, traveling of light along straight line, that phenomena is called as rectilinear propagation. So by using this phenomena, if we study the light, that is now called ray optics. Wave optics, study of light by using wave nature. Study of light by using wave nature. That is the wave optics. Okay. Now we want to study now here wave optics as per the syllabus of 12th standard. The different scientists were perform different experiments to study the nature of light. लाइट का नेचर क्या है, किस तरह से लाइट होता है, ये स्टडी करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने एफर्ट्स किए. तो न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट. ही रिटन theory about the nature of light. That theory is known as Newton's corpuscular theory. So let us study first Newton's corpuscular theory. Newton's corpuscular theory of light. Newton's corpuscular theory of light. Okay. Let us see postulates. Postulates also we can say assumptions. Newton proposed the theory in the year 1675. By performing different experiments, he formulated some assumptions, or we can say some postulates. First one is, light consists of very small. Light consists of very small elastic material particles. Elastic material particles known as elastic material particles having negligible masses. Having negligible masses called as corpuscles. Newton had given the name corpuscles to these particles. Okay, you see.
कॉल्ड एज कार्पस्कल्स। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग किसी भी सोर्स से जब लाइट निकल रही है वो पार्टिकल के फॉर्म में, वेटलेस पार्टिकल या बोल सकते निग्लिजिबल मासेस। निग्लिजिबल मासेस इसलिए क्योंकि मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल को कुछ ना कुछ तो मास है, हेंस वी कैन से निग्लिजिबल मासेस। बट यही अजम्पशन, यही पॉस्टुलेट उसका ड्रॉबैक बन रहा है। ड्यू टू कंटिन्यूस emission of light from the source, there should be reduction in the mass of the source. ओके, ये कॉमन सेंस की बात है। यदि लाइट मटेरियल पार्टिकल से बना है तो धीरे धीरे कंटिन्यूस लाइट इमिट होने से सोर्स का मास थोड़ा तो कम होना चाहिए, ठीक है। बट प्रैक्टिकली इवन इफ सोर्स ऑफ लाइट स्टॉप वर्किंग, नो चेंज इन मास। वो कंटिन्यूस 1 साल 2 साल लाइट दे रहा है, उसके बाद उसका मान लो ऑपरेशन, लाइट देने का जो प्रोसेस वो बंद हो गई, तो भी उसका मास कम नहीं होता। मतलब ये मटेरियल पार्टिकल अज्यूम करना, यही उसकी मिस्टेक होगी। तो ये फिर से हम ड्रॉबैक में डिस्कस करने वाले हैं। अब सेकंड पॉस्टुलेट क्या बोल सकते हैं, द कार्पस्कल्स ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये जो कार्पस्कल मतलब लाइट के पार्टिकल्स है, कार्पस्कल ट्रेवल along straight lines. Corpuscle travel along straight lines as far as they are traveling. They are traveling in same medium. जब तक एक ही मीडियम से लाइट पास हो रहा है तब तक पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन मतलब कार्पस्कल्स ऑफ द लाइट ट्रेवल्स अलोंग straight line. The corpuscle travel along straight line as far as they are traveling in same medium. जैसे मीडियम चेंज होगा वो डायरेक्शन चेंज करने वाला है, बट इन दैट सेकंड मीडियम अगेन इट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट assumption? When corpuscle enter the eyes we get sensation of light. जैसे ये कार्पस्कल अपने आइज के अंदर एंटर होते, वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट। तो व्हेन कार्पस्कल्स एंटर द आइज वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट। वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट। तो कार्पस्कल लाइट के वो अपने आइज के अंदर एंटर होते हैं तो हम डिफरेंट थिंग, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, हेंस वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट। फोर्थ वन बोल सकते हैं द डिफरेंट कलर्स। अपने आजू बाजू में जितने भी ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग कलर दिखते हैं वो ऑब्जेक्ट के कलर नहीं, लाइट के कलर। यदि कोई आपको ग्रीन ऑब्जेक्ट दिख रहा है मतलब उसके ऊपर जो लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट को कलर है, बाकी कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए ग्रीन दिख रहा है। ब्लैक दिखता है मतलब कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, आजू बाजू का दिख रहा है इसलिए ब्लैक बॉडी का एग्जिस्टेंस समझते हैं। द डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट sizes of corpuscles. Different sizes of corpuscles. मतलब अलग अलग साइज, छोटा कार्पस्कल, बड़ा कार्पस्कल, ये साइज क्या डिसाइड करती है, कलर। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन। एक्चुअली भले ये सही नहीं है लेकिन न्यूटन क्या बोल रहा था ये हम स्टडी करते हैं। न्यूटन ने क्या पॉस्टुलेट किए थे वो हम बोल रहे हैं अभी। Now fifth one, the reflection of light is due to the reflection of light
is due to repulsion of corpuscles by the reflecting surface तो जैसा भी ये बोर्ड आपको दिख रहा है या फिर ये वाल वगैरह जो भी आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे कार्पस्कल इंसिडेंट होते वो ऑब्जेक्ट वो मटेरियल उसे रिपेल करता है। रिपल्शन के बाद वो कार्पस्कल अपने आइज के अंदर एंटर होते एंड देन वी सी दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। द 6th नंबर, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The refraction of light is due to attraction of corpuscles. Attraction of क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं? Corpuscles by the surface of denser medium। डेंसर मीडियम का जो सरफेस है, मान लो ये ग्लास मीडियम है, ये आ रहा है लाइट, मतलब ये ऐसे कार्पस्कल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग आ रही, ये नॉर्मल है। आपको पता है ऐसा टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट बेंड होता है, तो डायरेक्शन चेंज होना मतलब रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ कार्पस्कल बाय द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। लेकिन अट्रैक्शन से क्या होने वाला है? स्पीड बढ़ने वाला है। दैट मीन्स इन दैट डेंसर मीडियम लाइट शुड हैव टू ट्रेवल फास्टर, बट प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट इन डेंसर इट इज ट्रेवलिंग विथ लेस स्पीड देन रेयर। तो डेंसर में स्लो चलता है, प्रैक्टिकली ऐसा हम एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं। लेकिन न्यूटन का यदि ये पोस्टुलेट का कंक्लूजन निकालते तो कंक्लूजन क्या निकालने वाला है? देखो, अट्रैक्शन से क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी, मतलब डेंसर में फास्ट होना चाहिए, लेकिन वैसा हो रहा है क्या? नहीं। अपने आप ही ये भी उसका ड्रॉबैक बन रहा है। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स। भले कुछ ड्रॉबैक है लेकिन कुछ मेरिट्स भी है। तो मेरिट्स ऑफ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थे, उसके पहले मेरिट्स चेक करते हैं। मेरिट्स मतलब उसके प्लस पॉइंट। मेरिट्स ऑफ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है। फर्स्ट, द रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन कैन बी एक्सप्लेन satisfactorily। रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन, ये आप लोगों को पता है कि लाइट सीधे रास्ते से जाता है, मतलब अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन जाता है, उसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। प्रोपैगेशन मतलब ट्रांसफर, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड by this theory। ओके, इस theory से रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ गया? रेक्टी मतलब स्ट्रेट, लीनियर मतलब अलोंग द लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन मतलब रेक्टिलिनियर। ये सबको पता है, लाइट स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही ट्रेवल करता है। सेकंड मेरिट क्या बोल सकते हैं इसका? जो फिनोमेना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रामन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। रामन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट अपने सिलेबस के लिए नहीं है। थोड़ी सी आपको आइडिया होगी, यदि कोई लाइट ग्लास के अंदर जा रहा है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो स्कैटरिंग से ओरिजिनल वेवलेंथ के अलावा और कुछ नए वेवलेंथ भी आते हैं। ओके, कुछ हायर वेवलेंथ आल्सो प्रेजेंट इन एडिशन विद ओरिजिनल वेवलेंथ। ये क्या होता है? स्कैटरिंग से होता है। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, ऑब्जेक्ट से यदि लाइट स्कैटर होता है तो उससे भी वेवलेंथ चेंज होती है स्कैटरिंग से, वो कॉम्पटन इफेक्ट है।
सिलेबस में भले ही नहीं है, लेकिन इतना याद रखो, रामन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर, और इसका पार्टिकल नेचर ही बोला था न्यूटन लाइट के लिए. द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? किसी मेटल के ऊपर यदि लाइट इंसिडेंट होता है तो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट होना, उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कुछ हायर कितनी भी हो. लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी अलाउड टू इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस एमिट्स द इलेक्ट्रॉन. उस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये भी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, इसलिए इसका ही मेरिट में आ रहा है. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रामन इफेक्ट इस सीवी रामन के नाम से जाना जाता है. कॉम्पटन इफेक्ट, etc can be explained by this theory. Can be explained by this theory. ये इसके बन गए प्लस पॉइंट. अब कुछ ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक ज़्यादा डोमिनेंट है मेरिट के ऊपर, इसलिए थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया है. तो क्या है ड्रॉबैक? अब ड्रॉबैक तो मैंने पहले आपको बोल दिया क्या है. मेन ड्रॉबैक क्या है? He assumed the corpuscles as material particles, and due to continuous emission of material particles, there should be reduction in mass of source. So drawbacks of Newton's corpuscular theory. ड्रॉबैक्स को हम बोल सकते हैं डीमेरिट. ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. पहला, as light consists of material particles, due to continuous emission of light, there should be reduction in mass of the source. As corpuscles are material particles. Corpuscles are material particles. Therefore, due to continuous emission of light, there should be. लाइट कहाँ से एमिट होता है? सोर्स से. देयर शुड बी रिडक्शन इन मास ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. तो जो भी लाइट का सोर्स है, ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है या सन है, तो कंटिन्यूअस उसमें से मटेरियल पार्टिकल निकल रहे, तो सोर्स का मास तो कम होना ही चाहिए. बट प्रैक्टिकली मास ऑफ द सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन प्रैक्टिकली क्या मिलता है? तो मास कांस्टेंट मिलता है. बट प्रैक्टिकली मास ऑफ द सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट. प्रैक्टिकली mass of source remains constant. ठीक है, ये पहला ड्रॉबैक बन गया. अब और एक ड्रॉबैक जो आपको मैंने अभी बोला है, लाइट जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना दिखाता है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ कॉर्पस्कल्स बाय द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम. अब डेंसर मीडियम का सरफेस अट्रैक्ट कर रहा है तो स्पीड बढ़ना चाहिए, तो लेकिन डेंसर मीडियम में स्पीड प्रैक्टिकली लेस होता है. न्यूटन्स थ्योरी, दिस थ्योरी कंक्लूड्स दैट, दिस मतलब न्यूटन्स थ्योरी, दिस थ्योरी कंक्लूड्स दैट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, speed of light in denser medium
is greater than the speed in rarer medium. ठीक है, ये स्टेज, but practically speed in denser is less than in rarer. This theory concludes that speed of light in denser medium is greater than speed in rarer. But practically, speed of light in denser is less than that मतलब speed in rarer medium. ओके, तो रेयर मीडियम के हिसाब से डेंसर में स्पीड कम है, प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके कंक्लूजन से तो उल्टा कंक्लूजन मिल रहा है, इसलिए इसका ड्रॉबैक बना। सो ड्यू टू हैविंग दीज टू मेन ड्रॉबैक, दिस थ्योरी कुडंट बी एक्सेप्ट। और इसका एक ड्रॉबैक है द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, और क्या बोल सकते हैं, डिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमेना बोल रहा हूँ मैं, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, interference diffraction, polarization और partial refraction, double refraction, etc. could not be explained by this theory. इस थ्योरी से ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होते, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने के लिए आज हम वेव नेचर का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी इसका ड्रॉबैक बन गया। सो ड्यू टू दिस ड्रॉबैक, दिस थ्योरी कुड नॉट बी accepted, it was discarded in those days. Then after, Huygens was the next scientist to propose the theory about the nature of light. इसके बाद फिर हाइगेन ने अपनी एक थ्योरी रखी लाइट के नेचर के बारे में, तो फिर उसे हम बोलते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइगेन्स ये खुद साइंटिस्ट का नाम है, एपोस्ट्रोफी बाद में। हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, he proposed the theory in the year 1678. Now let us discuss postulates. Okay, postulate, or you can say assumptions. First one is, according to Huygens, light from the source is transmitted in the form of longitudinal waves. आज आपको पता है लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव, लेकिन शुरू में इसने लाइट वेव्स का नेचर कौन सा बोला था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, द लाइट फ्रॉम द सोर्स is transmitted in the form of
longitudinal waves. In the form of longitudinal waves. What is second postulate? लाइट के वेव्स बोले लेकिन वेव्स बोल दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। प्रॉब्लम है उन दिनों में मैकेनिकल वेव्स जो बताते उसमें सबसे फास्ट वाली थी साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स मतलब कौन से? लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए फिर क्या होना चाहिए? मटेरियल मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। अब लाइट वैक्यूम से भी जा रही है, तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि फास्ट है, वैक्यूम से कैसे किया जा रहा है। तो फिर इन्होंने अज्यूम कर लिया देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ल्यूमिनिफेरस ईथर, इट इज इन वैक्यूम एज वेल एज इन ऑल ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू एनी मीडियम, ऑल्सो थ्रू वैक्यूम, ही अज्यूम hypothetical medium known as luminiferous ether. For the propagation of light, through vacuum and also through any transparent medium, he assume hypothetical medium known as luminiferous ether. उस मीडियम को उसने नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस मतलब जो ब्राइट हो रहा है, ऐसा जो ग्लो करता है खुद को, ल्यूमिनिफेरस। ठीक है, अब इतने से काम नहीं हो रहा है। ल्यूमिनिफेरस ईथर तो मान लिया, लेकिन लाइट इतना फास्ट क्यों है फिर? वैसे तो ऑल अटेम्प्ट्स टू लोकेट ईथर वेयर गेटिंग फेल्ड, ईथर तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मान लिया शुरू में उन्होंने ईथर है भी, तो लाइट इतना फास्ट क्यों है? तो उसके लिए फिर उसने साउंड के वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो कंसीडर किया था। उसके पहले और कुछ अजम्पशन देख लेते हैं। तीसरा क्या? व्हेन light waves enter the eyes we get sensation of light. When light waves enter the eyes we get sensation of light. We get sensation of light. Okay, ये postulates और postulates से मेरे डिस्कस देंगे। अब डिफरेंट कलर जो न्यूटन ने बोला था, डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पस्कल, लेकिन यहाँ पे वेव्स है इसलिए डिफरेंट कलर्स ड्यू टू द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट are due to different wavelength of light waves. Different wavelengths of light waves. अलग अलग वेवलेंथ, जैसे आपको पता है फिलहाल तो हम ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। वेवलेंथ चेंज हो गई तो कलर चेंज होता है, ऐसा अकॉर्डिंग टू हाइगेन। आगे फिर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर आर, अब ये जो फॉर्मूला है साउंड की वेलोसिटी, किसी मीडियम से यदि साउंड पास हो रहा है तो साउंड के वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। ये होता है इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिक कांस्टेंट, उसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम बोलते हैं। डेंसिटी मीडियम की,
तो जितनी हाई इलास्टिसिटी उतना स्पीड तो हाई आने वाला है, जितनी लो डेंसिटी उतना स्पीड हाई आने वाला है। डिनोमिनेटर जितना लार्ज उतना रेशियो स्मॉल आने वाला है, मतलब ये रिजल्ट स्मॉल आने वाला है। सॉरी, डिनोमिनेटर जितना स्मॉल उतना ये रिजल्ट लार्ज आने वाला है। तो फिर लाइट के लिए ये फॉर्मूला उसने अप्लाई कर दिया। क्यों अप्लाई किया? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उन दिनों जो पता थी वो कौन सी? साउंड की। साउंड भी बहुत फास्ट है, लाइट इतना नहीं है, लेकिन उन दिनों में जितने वेव्स पता थे उनमें वो फास्ट ही था। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके लाइट के लिए किस तरह से किया फिर? तो दैट ईथर इज हैविंग वेरी हाई इलास्टिसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी। अब इतने से काम नहीं चला, और एक बोल दिया उसे परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी। परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं बोलता तो फिर लाइट पास ही नहीं होता। द प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर आर इट हैज वेरी हाई इलास्टिसिटी, वेरी लो डेंसिटी एंड परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी। द प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जो ल्यूमिनिफेरस ईथर है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर are it has very low density, very high it has, यहाँ से नंबर देते हैं, it has very low density, very high elasticity, and नंबर 3 perfect transparency। परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी, ये 3 प्रॉपर्टीज उसे अज्यूम करनी पड़ी, क्योंकि ये नहीं अज्यूम करता था हाउ लाइट इज फास्ट, व्हाई इट इज फास्ट, ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए प्रॉपर्टीज उसने अज्यूम कर ली। अब पोस्टुलेट के बाद लेट अस स्टडी द मेरिट्स। अब मेरिट्स क्या है इसके? दिस थ्योरी कंक्लूड्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर इज लेस देन इन रेयरर। वो हम प्रूव करने वाले आगे कुछ डायग्राम से। आगे the phenomena related to wave nature, that is interference, diffraction, polarization, can be satisfactorily explained by this theory. Okay, लेकिन ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ऐसे assumption of luminiferous ether is the main drawback, because all the attempts to locate ether were getting failed in those days. ठीक है, मतलब अभी मिला ऐसे नहीं, अब तक वो ether